talking about wives, you guys are a couple? How long have you guys been married? 1.5 years. And arranged marriage or love marriage? Love marriage. घंटा फर्क नहीं पड़ता बाद में. So you guys met in college or company? What? College. Okay. And how long were you guys dating before this? 3 years. So 4.5 years you've known each other. In these 4.5 years, have you, Gaurav, ever won an argument against Rupal? I like how you're looking at him and not trying to answer the question. कभी हुआ है ऐसा? At once in a while, जब उसकी मर्जी है तो then. You know, and this happened after marriage also. देख शादी के बाद अगर तू आर्गुमेंट जीत रहे हो ना तो मेरे को ट्यूशन के लिए बुला ले. मेरे साथ नहीं हुआ. Like I've realized, you know, arguing with a lady is like a boxing match between Mary Kom and a punching bag. And when you're a punching bag, you can't attack, you can't defend, you can't even get knocked out. You just stay there and take the punches. And women know that they'll never lose an argument. But they'll still argue with you sometimes purely कि यार बड़े दिन हो गए warm up नहीं हुआ. So you'll get a call. यार मौसम बड़ा अच्छा है, पकौड़े ले आओगे? हाँ ले आऊंगा. तुमको शाम तक याद रहेगा? हाँ ले आऊंगा. ऐसा तुम ना रिमाइंडर लगा लो. नहीं ले आऊंगा यार, मेरे को याद रहेगा. मैं शाम को एक बार व्हाट्सएप कर दूंगी. अरे यार बोल तो रहा हूं ले आऊंगा. सुनो तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो? You know, men and women both play mind games. The difference is that a woman is playing chess. So she thinks 15 moves ahead. A man is just playing Ludo. No, कोई तरीका ही नहीं है. कई बार तो ऐसे लॉजिक्स मिलते हैं कि कोई मेरे पास तो कोई पॉइंट नहीं होता. लाइक माई वाइफ टोल्ड मी कि यार मैं ना आईफोन ले रही हूँ. लाइक क्यों? कहती यार उसके कवर देखें कितने क्यूट आते हैं. मैं क्या लड़ूं उसमें? वो iOS एंड्रॉइड की बात ही नहीं कर रही. कैमरे की बात है. क्यूट कवर आते हैं, क्या बोलोगे तुम? और एक क्यूट वर्ड ने इतनी जिंदगी खराब करी है ना. पहले कोई टाइम होता था सिर्फ 3 चीजें क्यूट होती थी: बच्चे, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे. आजकल हर चीज का क्यूट वर्जन आता है. इवन द कलर्स आर क्यूट. लाइक वी हैव अ पर्पल कलर डॉग कॉलर एट होम एंड वी डोंट हैव अ डॉग. कोई मैचिंग मिलेगा तो वेट कर रहे हैं हम अभी. Women, give me a cheer if you think women are more intelligent than men. नहीं कोई बात नहीं, मैं बिलीव करता हूँ इसमें. मेरी शादी को 13 साल हो गए. I'm completely domesticated. I strongly believe women are way more intelligent than men. And it's not just that women are intelligent. The problem is men in India are stupid. And they are not born stupid, they are brought up stupid. And I'll tell you how. The problem is that in an Indian family, there's no expectation from a boy. एक लड़के से इंडियन फैमिली में सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैदा हो जाए. Then he's brought up the same way you bring up a dog. कि जब तक खा पी रहा है और खेल रहा है तब तक ठीक है, 1-2 बातें मान जाएगा तो डेमो पर्पस के लिए भी अच्छा है. Whereas a girl is brought up with this constant threat and fear कि पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो. कुकिंग आनी चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो. प्रोफेशनली क्वालिफाइड होनी चाहिए, पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो. सेक्स और रोमांस के बारे में ज्यादा मत सोचा कर, पता नहीं कैसा लड़का मिले, कहाँ शादी हो. And if you remember, when we were kids, we were made to do a lot of stuff in the name of doggy. कि डॉगी आ जाएगा, खाना खा ले. डॉगी आ जाएगा, होमवर्क कर ले.
फिर तुम 7-8 साल के होते हो एंड यू सी ए डॉग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू लाइक साले तेरे चक्कर में टींडे खाए थे. You start throwing stones at the dog and the dog has no clue why he is being killed. Similarly, when a girl gets married, she looks at her husband, साले तेरे चक्कर में. And the guy has no clue. पहले 6 महीने तो हवा ही नहीं लगती क्या हुआ. फिर इतना रियलाइज होता है कि सॉरी बोलना है. Like, you know, for example, but guys, like Gaurav, you guys are fighting, for example, you know, just for a minute, just think about it. And you know, she's looking at you angrily. She's quoting your mistakes from 1972. And suddenly a friend of yours calls up and says, यार Gaurav, Manish आया हुआ US से, आजा दारू पीते हैं. Can you go? No, right? Just in case you pick up enough guts to go that evening. That event will be noted down, jotted down and stored in a folder called reference documents for all further arguments. तुम्हारे कंट्री का पता नहीं, रौनक जरूर लगी रहेगी. वी डिडंट स्टार्ट द फायर. भैया कभी तो उठा लो हमें. आदमी सो ही नहीं पा रहा वहां. अब मुझे समझ में आ गया, मैं नहीं कर सकता. फिरौती होती है, पता है. बधाई हो, ट्रंप आ गया. सही में मैं देख रहा हूं, आ गया ट्रंप यार. मुझे तुम्हारे कंट्री का पता नहीं कि क्या होगा आगे, पर देखो 4 साल रौनक तो लगा के रखेगा ये आदमी. रौनक जरूर लगी रहेगी. सही में रोज तुम उठोगे और आज क्या बोला होगा, इसलिए यार उस आदमी पे सट्टा लगना चाहिए. कनाडा भी अमेरिका में ले लो, गल्फ ऑफ अमेरिका बना देंगे उसको. रोज कुछ नया निकल रहा है. ग्रीन कार्ड वालों को भी शक हो रहा है कहीं वापिस ही ना भेज दे ये आदमी. बड़े कंट्री बहुत सही है यार, बहुत एंटरटेनिंग है अमेरिका में. देख, एक तो यहां मैंने देखा कि कुछ भी हो जाए टी शर्ट जरूर छाप देते हैं उसकी. हर चीज की टी शर्ट बिक्री है यार. मैं यहां लैंड क्यों, कम से कम 25-30 टी शर्ट मैंने ट्रंप की अलग अलग तरीके की देखी. सही, हर चीज की टी शर्ट निकाल देते हैं यार. मैं एलए में घूम रहा था, वहां मैंने एक्चुअली देखी है टी शर्ट, वी डिडंट स्टार्ट द फायर. मैं भाई बुझने तो दो कम से कम. ये बेच रहे हैं हर चीज की टी शर्ट यार. यहां मैं देखा लोग वो टी शर्ट पहनी थी, स्टॉप चाइल्ड लेबर. मैंने कहा बहन ये बांग्लादेश के बच्चों ने ही छापी है. मतलब सही में यार. दूसरा मैंने यहां पे देखा, एक तो एक तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है कि मैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे रहते हैं यहाँ पे. लोग घर बुलाते हैं, मैं किसी के घर नहीं जाता, रात नहीं रुकता कम से कम. क्योंकि मैंने देखा एक तो जिनके पास पैसे आ जाते हैं ना यहाँ, वो बनाते जंगल में घर. सही में मैं जर्सी में, मेरे दोस्त ने बुलाया आजा मेरे घर रात रुक. पहला मेरा ट्रिप था, मैं गया उसके घर, उबर करी है मैंने. शहर निकल गया, गांव निकल गया, पेड़ खत्म होने को आ रहे, घर ही नहीं आ रहा यार. कहां जाके बनाया उसने, सब निकल गए. लास्ट में एक हवेली दिख रही है बड़ी सी. मुझे एक बार शक हुआ है कि मेरा दोस्त नहीं बाहर निकलेगा इसमें से, चौकीदार निकलेगा, वो जो 150 साल बाद वाला ना. बाबा कोई नहीं आया यहां आज तक. राम से ब्रदर्स को किराए पे दे यार. कहां जंगल में बनाते. उसके घर में हिरन आ रहा है, उसके घर खरगोश आ रहे हैं.
पॉसम आ रहा है, बताओ। पॉसम उसके घर पे पॉसम इंडिया में नहीं आया अभी तक, पता? हमारे चिड़ियाघर में नहीं है पॉसम। पॉसम की हिंदी नहीं बनी, यहां घर पे आ रहा है यार। और दूसरा, मुझे नक्शे नहीं समझ में आते। घर बना लेते हैं बड़ा सा, जब तक बड़ा घर बनता है तब तक लोग बचते हैं 2, कमरे हैं 8, ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे 3 ड्राइंग रूम, 2 डाइनिंग टेबल, खाना सारे किचन में खा रहे हैं। खाना सब किचन में खा रहे, जिसका खत्म होता है वो अपनी प्लेट धोने चला जाता है साथ के साथ। तुम्हारे कौन सा कांता आ रही है कल सुबह, 2 मिनट नहीं लगाते, साथ के साथ प्लेट चमकाने में लग जाते हैं। सही। फिर एक वो बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट बड़े शौक से बनाते हैं लोग घर में। बेसमेंट में एक मैन केव होती है, जिसमें वो मैन कभी जा ही नहीं पा रहा है, बड़े शौक से बनाते हैं। उसमें एक वो पूल टेबल पड़ी है, जिसका 5 साल से प्लास्टिक भी नहीं उतरा है अभी तक। एक्सरसाइज रूम बना हुआ है, जिसमें 4 डंबल पड़े, उनको जंग लग चुका है कि भैया कभी तो उठा लो हमें। उस बेसमेंट में कोई नहीं जाता। उस बेसमेंट में वो मैन तभी जा रहा है जब वाइफ बोलती है ना कि ऊपर वाले फ्रिज में पेप्सी खत्म हो रखी है, नीचे वाले में चेक कर लो एक बार। वो बेसमेंट मुझे लगता है उस हिसाब से बना है कि जब एपोकैलिप्स आएगा तब हमारे पास एक कमरा होना चाहिए। और ये 2 फ्लोर इतने बड़े बड़े, मतलब हजारों स्क्वायर फुट के बने, बेडरूम सारे फर्स्ट फ्लोर। कोई नहीं सोता ग्राउंड फ्लोर पे, यहां पे सब फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम। 4 बेडरूम बना रखे होंगे ऊपर, और सारा घर लकड़ी का। तो रात को कोई भी उठ जाए ना 8 बजे भी पानी पीने के लिए, सारा घर जाग जाता, डम 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 डम। आदमी सो ही नहीं पा रहा वहां, मैं नहीं कर पाता। दूसरा, मैंने यहां पे देखा लोगों के घर, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को मिलता हूं ना, एक तो हम बैठे हुए थे, एक बार तो बात कर रहे थे आपस में कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ। मैं भी सोच रहा, एक तो ये इंजीनियर है, ये सीए की बात क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे पता ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है। लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है। यहां 2-3 अटेम्प्ट, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है वो बहुत चौड़े हो रहे हैं, बड़े शौक से बता रहा मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं कहा मैंने दिल्ली से बनवाया, मेरा 0 अटेम्प्ट में हुआ है। 1500 रुपए एक्स्ट्रा दो, अगला घर देके जाता है। वो ये भी नहीं चेक करता कि अगले की टांगे में है कि नहीं है। सही। और मैंने शुरू में सोचा भी था कि थोड़ी ड्राइविंग में यहां करके देखूंगा। अब मुझे समझ में आ गया मैं नहीं कर सकता यहां ड्राइविंग, मैं नहीं कर सकता। यहां पेशेंस बहुत चाहिए यार, बहुत पेशेंस चाहिए। हम शॉपिंग मॉल से निकल रहे थे, वो 50 मीटर आगे एक आदमी अभी सोच रहा है कि मैं क्रॉस करूं, ये रुक गया। मैं क्या हुआ, कहता वो देख रहे उसका पैर ऐसे ऐसे हो रहा है बार बार। मैं, तुम ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे इन लोगों को। देखो मैं दिल्ली से आया हूं, हमें तो कोई क्रॉस करता हुआ देख जाए ना, हम तो रेस लगा लेते हैं, निकल के दिखा दे तो हमसे पहले। फिर मुझे यहां का टिप वाला कल्चर नहीं समझ में आता। सही में देखो 15-18%, अगर मैं खाना वहां खा रहा हूं ना बैठ के हाई एंड रेस्टोरेंट में कहीं पर, अगला सर्व करके जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एयरपोर्ट पे काउंटर पे मैं गया हूं, पानी की बोतल भी मैं ही लेके आया था, वहां भी ये घुमा के दे देंगे कि 15%, 18%। मैं एक बटन बनाओ, शर्म कर।
किस बात की टिप है भाई ये? सही में हाई एंड रेस्टो समझ आता है, फूड कोर्ट में मांग लेते हैं यार। मैं काउंटर पे गया हूं, मैंने पिज्जा चूज करा, उठा के भी मैं ही लाऊंगा, टेबल भी मैं ही ढूंढूंगा, उसमें भी वो घुमा देते कि 15, 18, 21 यार। और प्रॉब्लम क्या है, वहां ना देनी भी पड़ रही है टिप, वहां देनी भी पड़ती, क्योंकि अभी मेरा पिज्जा बना भी नहीं है, अभी पिज्जा बना भी नहीं है। अगर मैंने 0 दे दी, मुझे नहीं पता पिज्जा में क्या थूक के ला रही है उसके बाद, वो टिप नहीं है, वो फिरौती होती है, पता है। बट अगर एक वाइफ ने अपनी फोटो खिंचवाई है तो पति से वो कैमरा लेगी, देन शी लुक एट द पिक्चर, फिर उस वो फोटो से ना वो गेम खेलती है, वो कहते हैं ना जिसको कि इस चित्र में 10 गलतियां निकालिए। लाइक माई वाइफ यूजेज एन आईफोन, आई डोंट यूज एन आईफोन, आई हेट आईफोन। द रीजन इज कि यही एक ऐसी कंपनी है जो जब भी नया फोन निकालती है ना, पुराने वाला स्लो कर देती है, राइट? जब भी नया फोन आएगा ना, तुम्हारे पुराने फोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि सुनो एक नेक्स्ट इस पे अपडेट है, वो डाउनलोड कर लो। वो आदमी डाउनलोड करता है कि चलो अपडेट है तो बेटर हो जाएगा फोन। अगले दिन सुबह उठो, फोन को लकवा मारा होता है, आधी ऐप नहीं चलती, कुछ नहीं चल रहा, फिर आदमी को नया खरीदना पड़ता है। और फोन, और है क्या, ये लोग नई नई चीजों में आ रहे हैं। घड़ी, आईफोन की वॉच, एप्पल की वॉच पहनते हैं आजकल लोग, वो भी 2 साल बाद बदल रहे हैं। पहले घड़ियां 15 साल चलती थी, राइट? और ये नई नई चीजों में जा रहे हैं, एप्पल टीवी निकाल रहे हैं, सारा कुछ। मेरे को डर लग रहा है, मतलब हाँ जी, वाइफ ने निकाल दे। ये ना फनी भी नहीं था। अब तुमको पता है मैं क्यों हूं स्टेज पे, तुम क्यों नहीं हो? देखो मैं ना बॉम्बे से दिल्ली तक आया हूं अपनी वाइफ को छोड़ के, ताकि मुझे बोलने का मौका मिले। तो ये 1 घंटा मेरे को दे दे, उसके बाद तेरे स्टेज दे देंगे। सो टॉकिंग अबाउट आईफोन, यू नो, तो आईफोन का ये हर बार कर रहे हैं। और यही एक कंपनी है जो अपना नया प्रोडक्ट निकालने के लिए पुराने वाला खराब कर देती है। कहीं और नहीं हो रहा। कभी हुआ है वैन यूजेन का नया कलेक्शन आया, तुम्हारी घर पे पड़ी 40 से 36 हो गई? नहीं हो रहा, राइट? कोई तुम्हारे जूते नहीं 8 से 6 हो रहे, किसी नाइकी के नए जूते आए। यही करे। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये कंपनी ग्रो कर रही है, ये नई नई चीजों में जा रही है। कल को इन्होंने जॉकी खरीद ली कंपनी, मेरे तो घर में पोचे ही बहुत हो जाने। एंड इट्स ब्लडी एक्सपेंसिव, इट्स एन एक्सपेंसिव फोन, राइट? 1.25 लाख रुपए का फोन। मुझे याद है आईफोन एक्स नया नया आया, मेरी वाइफ को खरीदना है, 1.25 लाख रुपए का फोन, और खरीदना भी पहले 1 हफ्ते में। मैं तो पहले 1 हफ्ते में गया हूं टाटा क्रोमा में, लाइन लेके मैंने खरीदा, लाइन में लग के 2 घंटे की लाइन, वहां मैं खड़ा हूं लाइन में, और साइड पे मैंने देखा हिटाची का एक फ्रिज पड़ा था, 1 लाख रुपए का, 650 लीटर का, जो ऐसे और ऐसे खुलता है, 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रीजर एक फ्रिज, बर्फ भी बाहर मिल रही है, पानी भी बाहर मिल रहा है। 10 साल तक 8 लोगों का खाना ठंडा रखेगा वो, उसको उस पर कोई थूक भी नहीं रहा है। सबको 1.25 लाख रुपए का फोन लेना जो 1 साल चलेगा। एंड इट्स लाइक, फर्क तो लार्जली कैमरे का है, क्योंकि बात करने वाला तो 1500 में भी आता है फोन, राइट? बाकी पैसे तो कैमरे के। मैं यार हिटाची वाले कैमरा लगा के क्यों नहीं देखते अपने फोन में? क्योंकि देखो प्रायोरिटी तो वही है कि खाने को चाहे उल्ली लग जाए पर फोटो अच्छी आनी चाहिए, उसकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। आई हैव रियलाइज्ड इट। मैं तो देखा अपने बच्चों के साथ, आई हैव टीनेज किड्स। सो हम एक बार वो वॉफल और आइसक्रीम खाने चले गए, वॉफल विद हॉट वॉफल विद आइसक्रीम ऑन टॉप। हम, हाँ, वो स्वाद होता है, बट वो तब स्वाद होता है जब तुम फोटो खींचे बगैर खाओ। पहले मेरी बेटी ने 10 फोटो खींची, फिर मेरा बेटा कहता तेरे को खींचनी नहीं आती, फिर उसने ऊपर से खींची। तो हमने वॉफल आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, जब तक खाया हमने दूध में रस डुबो के खाया। ये प्रॉब्लम।
मेन काम तो फोटो खींचना। मैं कहा यार लगाओ हिटाची उसमें दरवाजा, और फोन में तो फिर भी डेप्थ का प्रॉब्लम है, फ्रिज में तो डेप्थ ही डेप्थ है। तो मूवी वाला कैमरा लगा, साथ में चाहे सुभाष के भी बिठा, जगह ही जगह है। वो नहीं कर। और कैमरा ने क्या लाइफ चेंज करी है यार, कितनी लाइफ चेंज करी है। अब राखी भी ऐसे बांध रहे हैं, टिक्का भी ऐसे ही लगा रहे हैं, वरमाला भी ऐसे ही डाल रहे हैं। मैं कहा यार ये तो ढंग से डालो, ये गलत डल गई तो प्रॉब्लम है, राइट। हर चीज में यही कर रहे। और आईफोन ने ये एक गलती करी है, और इसलिए तुमको ना यहां दिल्ली में कई लोग दिखेंगे, यू नो, लेट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर एनी ऑफ यू, कि एक फोन आईफोन रखा है, साथ में एक चाइनीज फोन रखा हुआ अलग से। ये भी कर रहे हैं लोग, ये कर। हाँ मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आईफोन वाले हैं बेवकूफ, ये बना रहे कैमरा बहुत बढ़िया, तो ये कहते हैं कि आपको फोन बहुत नेचुरल फोटो आएगी। एंड वी आर लाइक पागल, नेचुरल तो हम शीशे में भी देख सकते हैं, हमें सुंदर फोटो चाहिए। ये चीनियों को समझ में आ गया, वो कह रहे हैं इनको चाहिए गोरा, वो सबको गोरा कर देते। तो आईफोन वाले पागल हो रहे हैं, हमारे में कार्ल जीस का लेंस है, वो कह रहे हैं हमारे में फेयर एंड लवली है, ब्लैक हेड रिमूवर भी है, वो सब करके दे रहे हैं फोटो। तो हम ले रहे हैं फोटो उसी में, चाइनीज वाले में ले रही जनता फोटो मेजरली, तो Xiaomi वाले वो फोन दे रहे हैं जिसमें आपकी मम्मी जैसे आपको देखती है आप वैसे दिखते हो, एग्जैक्टली वो दिख रहे हो, तो वो चल रहे हैं फोन। और फोटो लेने में मैंने देखा कि फोटो एक तो ना बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सारी, हर जगह हम फोटो ले रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में आजकल 2 वेटर सिर्फ फोटो देने के लिए, फोटो लेने के लिए रखे होते हैं उन्होंने, 2 उन्होंने इसीलिए रखे हुए एक्स्ट्रा। और होता क्या, फोटो ना आदमियों को लेनी नहीं आती। Women know how to take pictures, right? Women know how, men don't know how to take pictures. If you don't believe me, look at pictures of women together. जब ये पार्टी पे जाती है, मैं अपनी वाइफ की फोटोग्राफ देखता हूँ, वो 5-5, 6-6 वो लोग क्या फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, सब एक के साथ एक खड़े होके, सब एक दूसरे का पेट कवर किया हुआ है सबने। क्या सिमेट्री होती है उनकी फोटो में। हाँ, बिल्कुल। अरे यार वो उनकी फोटो देखो, उसमें पता चलता है इस फोटो से पहले डिसाइड हुआ था कि इसमें हम 72 डिग्री पे मुड़ेंगे। हर फोटो का एक थीम होता है, 5 मिनट की ग्रुप डिस्कशन होती है। Men don't know how to take pictures. You don't believe me? Look at a picture of 5 guys together. एक का सिर आ रहा है, एक का हाथ आ रहा है, एक का पेट आ रहा है, सारे ऑर्गन मिला लो तब जाके एक आदमी बनता है उस फोटो में। एंड लेडीज नो, इसीलिए तुम देखोगे अगर एक पति फोटो खिंचवाता है ना और उसकी वाइफ खींच रही है तो कैमरा पकड़ेगा, वो वापस रख लेगा जेब में। बट अगर एक वाइफ ने अपनी फोटो खिंचवाई है तो पति से वो कैमरा लेगी, देन शी लुक एट द पिक्चर, फिर उस वो फोटो से ना वो गेम खेलती है, वो कहते हैं ना जिसको कि इस चित्र में 10 गलतियां निकालिए। यार इसमें सैंडल भी नहीं है यार मेरे ढंग से, आंखें भी आधी बंद आ रही है, दोबारा लो यार तुम। हाँ साइड से लो। अरे कैमरा आने के बाद मुझे पता चला कि लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल में भी फर्क होता है। लोग एक साइड खड़े ही नहीं हो रहे, अब को पता है सिर्फ दूसरी साइड अच्छी लगे। आजकल तुम जाओ, छुट्टी काउंट ही नहीं होती अगर तुमने कैमरे की फोटो नहीं डाली, काउंट ही नहीं हो रही। दुनिया जा रही मॉलडीव्स, वहां से फोटो डाल रही। मॉलडीव्स वाले अब वीजा भी तभी देखते हो, वो पहले तुम्हारे कपड़े उतरवा के देखते कि कैसे लग रहे हो तुम बिना कपड़ों के। वो सब देख के वो चेक करके दे रहे हैं आजकल। अगर तुम नहीं अच्छे दिखते तो वो वीजा पे लिखवाते कि ये फोटो सिर्फ पूल में से इतना सिर निकाल के देखेगा, वो नहीं दे रहे। एंड देन देयर इज दिस न्यू ट्रेंड ऑफ सेल्फीज, राइट? सेल्फी ठीक है, सेल्फी इज नाइस, यू नो, तुम अपनी फोटो खुद ले सकते। 4-5 लोगों तक सेल्फी ओके, 12 लोगों वाली सेल्फी नहीं होती यार। 12 लोगों वाली सेल्फी नहीं होती, क्योंकि वो जो आदमी फोटो खींच रहा है उसकी शक्ल इतनी बड़ी, एक तरबूज 12 अंगूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। और अब मैं अगले 4 महीने में 3-4 वीडियोस कम से कम और निकालूंगा, तो ऐसा करो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि एक अलर्ट आ जाए अगला जब वीडियो आएगा।
और देर आर अराउंड 22 स्टैंड अप वीडियोज ऑन माई चैनल. अगर कुछ मिस हुए हैं तो वापस जाके वो भी चेक कर लो. All the way from India, the most funniest, Amit Tandon! Now I'm a father, so I've seen both the sides. I've been a son, I've been a father, so I've seen both the sides. Like बाप भी कम नहीं होते हम. Like हमें मतलब हमें शांति नहीं मिलती जब तक हम 4 बार दिन में बच्चे को टोके ना. हमें लगता ही नहीं हमने अपना फर्ज निभाया है. Like बच्चा खेल रहा हो, तेरा होमवर्क हो गया? अगर बाय चांस वो कह दे हाँ पापा कर लिया था सुबह, पेपर कब है तेरे? 4 हफ्ते बाद है. अच्छा पेपर वाले दिन ही पढ़ना है तूने? और फादर मजे लेते हैं. मम्मी डांटती है प्रॉपर कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. फादर डायरेक्टली नहीं बोलते. लाइक मेरे फादर अगर हम एग्जाम्स के आसपास पिक्चर देख रहे हो ना तो ही विल कम इन एंड ही लाइक अच्छा इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन श्रीदेवी पे भी आ रहे हैं तेरे. मजे लेते हैं. फिर एक और डायलॉग मिलता होता था, 12वीं में तैयारी कर ले, ढंग से पढ़ ले, सारी उम्र सेट है. 12वीं में जोर लगा ले. मतलब इतना दहशत देते थे. मुझे लगता था 12वीं का रिजल्ट लेके बाहर निकलूंगा स्कूल से, एजेंट खड़े होंगे वहां कि 90+ मर्सिडीज खड़ी है तुम्हारी, 70 से 90 तुम लोगों की मारुति डिजायर आई हुई है, 50 to 70 तुम्हारा स्कूटर है, और मनीष गुप्ता तेरे 42% आया ना. ये गोलगप्पे की रेडी भेजी है सीबीएसई वालों ने तेरे लिए. इतनी दहशत डाल के रखते थे हमको. फिर एक डायलॉग सुनने को मिलता था कि तुम्हारे लिए तो बेटा बड़ा आसान है आजकल. हम जैसे जाते थे ना, लाइक मेरे फादर मुझे कहते थे मैं 7 किलोमीटर पैदल जाता था रोज स्कूल. मैंने कहा पापा आप अमृतसर में रहते थे. सन 1955 में अमृतसर 4 किलोमीटर का था. या आप जलंधर क्यों जाते थे पढ़ने रोज? सबके स्कूल दूर होते थे, सबके. लाइक टाउन प्लानिंग खराब थी क्या तब कि कोई स्कूल की एप्लीकेशन लेके जाए ना? शहर में नहीं देंगे लैंड, कोई आइलैंड ढूंढो आप, चारों तरफ नदियां होनी चाहिए, हो सके तो 7-8 मगरमच्छ भी छोड़ देना वहां पे. सबके स्कूल दूर. फिर कंफ्यूज करते थे तुमको, लाइक इतना कंफ्यूज. लाइक मैं छोटा होता था, मेरा एक फ्रेंड होता था बॉबी करके, तो हम ना इकट्ठे खेलते थे, पर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था. तो मेरी मम्मी मेरे को कहती थी बॉबी के साथ मत खेला कर, तू भी नालायक हो जाएगा. मैं तो लगता था उनको कि ये इन्फेक्शन से फैलती है ये कुछ. तो मैंने छोड़ दिया खेलना. छोड़ दिया मैंने. 10वीं करी, 12वीं करी, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करी, MBA करके आई गॉट इनटू अ जॉब. इतने में क्या हुआ, बॉबी 10वीं में हो गया फेल. उसने अपना केटरिंग का काम शुरू किया. जब मेरी MBA खत्म हुई तब तक उसके 3 मैरिज पैलेस थे. मैं छुट्टियों में घर आया, मेरी मम्मी मेरे को कह रही तू वो बॉबी होता था ना तेरा दोस्त, उससे बना के रखा कर थोड़ी. हर चीज को हाँ करते रहो.
जब 18 का हो जाएगा उसके बाद तो वैसे ही सोसाइटी की प्रॉब्लम है. We have this way of handling our kids, you know. There's something called good cop, bad cop. You know what good cop, bad cop, right? कि you know between in parenting they use good cop bad cop. एक parent अच्छा, एक parent थोड़ा खराब है. So we also follow that good cop bad cop practice, and I choose to be the good cop. Not because my wife is naturally a good bad cop, but because you know honestly good cop होना बहुत आसान है. That's why all fathers become good cop because आलस. Right? It's easy to be good cop. कि बच्चा जब तक पैसे ज्यादा नहीं फूक रहा तब तक हर चीज को हाँ करते रहो. जब 18 का हो जाएगा उसके बाद तो वैसे ही सोसाइटी की प्रॉब्लम है. It's easy to be good cop. Because the difference between a good cop and bad cop is कि as a bad cop you think about the bright future of your kids, right? That's why you become a bad cop. Good cop thinks about a peaceful present for himself. That's how we operate. But you know कभी कभी हो जाता है, you know, my wife will tell me कि मैं ही हमेशा क्यों बुरी बनूं, मैं क्यों हमेशा बुरी बनूं, you should also handle this. So once my wife told me, she's like, you know, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही हूँ, बच्चों के एग्जाम्स है, तुम देख लेना. लाइक ठीक है, पढ़ लेंगे बच्चे. सो माई वाइफ वेंट एंड यू नो बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, एंड आई सॉ माई सन ही इज नॉट स्टडिंग. सो आई वेंट टू माई सन, लाइक बेटा पढ़ ले. लाइक पापा थोड़ी देर में पढ़ता हूँ. दूसरी बार गया, लाइक कर रहा हूँ थोड़ी देर में. तीसरी बार जब मैं गया, ही वाज स्टिल ऑन अ वीडियो गेम. सो देन आई सैट हिम डाउन, मैंने कहा बात सुन, यू नो मैं गुड कॉप एंड मॉडर्न फादर जो बहुत ज्यादा यू नो मार्क्स पे फोकस नहीं करते. राइट वो वाला एक जोन है. तो मैं उसमें मैं कहा बात सुन, तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को? कहता पापा अभी तो नहीं कर रहा. मैं फिर एक काम कर, इस बार बिना पढ़े जा, बिना पढ़े एग्जाम दे. अब वो डर गया, क्योंकि देखो मतलब गुड कॉप एक बात है, बट ये तो ड्रीम कम ट्रू वाला कॉप हो गया. ये हजम नहीं होता, राइट? सो माई सन वॉज स्कैर्ड. ही थॉट कि मैं उस जोन में जा रहा हूं जिसमें नॉर्मली मम्मी जाती है कि अच्छा मत पढ़, छोड़ दे पढ़ाई, कल से स्कूल भी जाना छोड़ दे. ऐसा कर, तू एक समोसों की रेडी लगा ले, समोसे तल के बेचा कर, और जब तेरे दोस्त आएंगे ना कार पे समोसे खरीदने, फिर उनको बोलियो कि मैं तो मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था इसलिए मैं समोसे तल रहा हूं. वो पूरी सो आई लाइक नहीं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, बिना पढ़े जा. इट टुक मी अ वाइल टू कन्विंस हिम, सो मच सो कि मुझे उसको लिख के देना पड़ा कि पापा ने बोला है कि बिना पढ़े. मैं गया, अगले दिन एग्जाम तो जैसा हुआ वैसा हुआ, बट उसने स्कूल जाते ही अपने सारे फ्रेंड्स को एक एक करके सबके पास गया एंड ही टोल्ड देम कि मेरे पापा ने पता क्या बोला, बिना पढ़े जा. उसकी क्लास से मुझे 20 नए इंस्टाग्राम फॉलोअर मिले हैं उसने. वो अलग बात है कि वो पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने मेरे को निकाल दिया उसके बाद. पापा, हाँ आप जो है मेरे को बार बार वीडियोस में डालते रहते हो, मेरे हिसाब से मेरे को इसके पैसे मिलना चाहिए. पैसे चाहिए तेरे को? ठीक है, इस कैंपेन के जो आएंगे उसका 5% तेरे को दे दूंगा. आई विल सेंड यू द अमाउंट. तो तू 18% लगा के जीएसटी इनवॉइस रेज कर दियो. 7.5% मेरा टीडीएस कटेगा, और 15% तूने फिर एजेंसी को भी देना, क्योंकि काम तो वो लेके आए थे. तो इन हैंड कितना आएगा? इन हैंड कैलकुलेट करने के लिए तो हाँ समझ गया, पहले मैथ जरूरी है, अभी कैलकुलेट करके बताता.
एक मेरी और मेरी वाइफ की पहली मेजर लड़ाई हुई थी शादी के 1 महीने बाद, ताजमहल देखने से 2 घंटे पहले। एक हम आगरा गए हुए थे, रात रुके, सुबह उठे, गलती मेरी थी। नहीं, ये तो जेन्युइनली मेरी थी, अब तो डिफॉल्ट से होती है। हुआ क्या कि जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो रोमांस में बता रहा हूं गलत चीज। पहला दिन शादी के बाद मॉर्निंग आई वोक अप बिफोर माई वाइफ एंड आई वोक अप एंड आई वाज लाइक, ये मेरी वाइफ का पहला दिन है इस घर में, इसको पहली चाय इस घर की मैं पिलाऊंगा। यू नो, रोमांटिक। मैं उठा, मैंने चाय वाय बनाई, बिस्किट रखे, नमकीन रखी, फूल वूल रखे साथ में। फूल होते हैं नए घर में, ऐसा नहीं खरीद के लाया। मैं लेके गया, मैं उसको दी। शी टुक हर फर्स्ट सिप एंड शी इज लाइक, आह क्या चाय बनाते हो यार तुम, अब तो मैं अपने हाथ की पी नहीं सकती। 16 साल हो गए उस बात। चाय। तो हम आगरा गए, वहां रात रुके हुए थे, सुबह उठे। अब मैं पहले उठा, वाइफ सो रही थी, मैं गलती से अकेले की चाय बनाई और पी ली। टोल्ड यू, गलती मेरी। मेरी वाइफ उठी, लाइक यार चाय, यार सॉरी मैं पी बैठा हूं, तेरे लिए बना देता हूं। कहती ना, मेरे को तो वही वाली चाहिए। मैं यार वो तो पॉसिबल नहीं। कहती करो। अरे मैं यार लॉजिकल बात करो, तुम तो रहने दो लॉजिक, तुम बात सुनो। तुम उस दिन 3 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी तुम्हारे वाला खाना खाया। तुम उस दिन 2 घंटे लेट आए, मैंने वेट करी। लाइक लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। लाइक हमने पूरा ताजमहल एक दूसरे से बात किए बगैर मुंह सड़ा के देखा, मुंह सड़ा के। लाइक इवन शाहजहां भी कब्र में बैठा हुआ सोच रहा होगा, ये लोग तो डिजर्व भी नहीं करते, ऐसे इतना पैसा खर्च किया। बट अब चेंज हो गया। अब हो गए शादी को 16 साल। अब तो हमारा लड़ाई का टेम्पलेट है, अब तो टेम्पलेट है, हमको पता है 4 घंटे चलनी है। उसने ये बोलना, फिर मैंने ये बोलना, फिर उसने ये बोलना, मैंने ये बोलना। 15 मिनट लड़ाई चलेगी, फिर 4 घंटे बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाना। वी कम टू दैट पॉइंट। और है क्या कि लड़ाई होनी भी चाहिए, वंस इन अ वाइल होती रहनी चाहिए, काफी अच्छी होती घर के लिए। आई टेल यू हाउ। जब लड़ाई होती है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि हम 15 मिनट पहले एक दूसरे को सुनाते हैं कि तूने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, हम नुक्स गिनाते हैं। उसके बाद हम 4 घंटे बात नहीं करते। पर जब वो 4 घंटे ना, अब हम पे प्रेशर है कि हम दूसरे जने को और पॉइंट्स ना दें। सो वी आर एट आवर बेस्ट बिहेवियर नाउ, दोनों अपने बेस्ट बिहेवियर। इस चक्कर में घर साफ हो जाता है, क्योंकि दोनों तमीज लगे, कोई तौलिया नीचे नहीं पड़ा, कोई जुराबे बाहर नहीं है, फ्रिज में बोतलें लगी, बच्चे भी डरे डरे सब कुछ कर रहे हैं कि ये कभी भी फट पड़ेंगे, अपना आराम से काम करते रहो। वो होनी चाहिए। और नई नई शादी की लड़ाई में चक्कर क्या होता है, नई नई शादी में जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो कोई तीसरा बंदा हमको देख लेना, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये लड़े हुए हैं, मतलब शक्लें लाल हैं, मुंह सूजे हुए हैं, बात नहीं कर रहे, पता चल। हमारा नहीं अब पता चलता, हम हो गए प्रोफेशनल। मतलब अब तो हम लड़ रहे हो, पूरा धुआंधार भी लड़ रहे हो ना, बीच में कोई घर की बेल बजा दे, हम नॉर्मल हो जाते हैं। और क्या हाल चाल है, बैठो 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 बैठो। We've come to a point where we started planning our fights. क्या आज क्रिकेट मैच आना है, 4 घंटे शांति के चाहिए। चाय अकेले की बना लेता हूं। One more thing change. Like when you're newly married, the 3 magic words are I love you. Now our 3 magic words are I told you. जितना मजा आता है ना अपने पार्टनर को बताने में कि देख मैंने तो तेरे को कहा था, तुझे सुननी थोड़ा ना होती है, किसी चीज में नहीं। Like if we are going to the airport for example, me and my wife, and I am driving, and if my wife tells me कि सुन ये लंबा रास्ता है, दूसरा वाला ले ले, तो अगर मैं उसका बताया हुआ रास्ता ले लूं, तो मैं सारा रास्ता यही प्रे करता हूं कि भगवान करे फ्लाइट मिस हो जाए हमारी।
पैसा तो आदमी कमाता रहता है लाइफ में, ये सुख तो कभी कभी मिलता है। गुड़गांव मेरे ख्याल में दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक सड़क पे हो सकते हैं। सही में, मतलब यहां तुमको बकरी और बेंटली एक सड़क पे दिख जाएगी, राइट? और यहां बेंटली में भी बकरी दिख सकती है। यूएस में खास करके व्हेन यू गो टू यूएस, दे मार्केटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग, बट गलत चीजों में बेचते। जैसे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड दे सेल इट एज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। खास करके वहां जो माँ बाप खड़े होते हैं ना 2.5 घंटे से लाइन में, धूप में पसीनों पसीन खड़े हुए 2 मिनट की राइड के लिए, उनकी शक्लों पे कोई हैप्पीनेस नहीं। वो इसी डर में खड़े हैं कि इस लाइन से हटेंगे, सामने एक और लाइन दिखेगी अभी, या इसको $40 का कोई मग पसंद आ जाएगा बच्चे को। हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क इज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आई वेंट देयर, एवरीबडी इज हैप्पी देयर। अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो जाना, वहां पे सब खुश है, वहां पे सबके सब खुश है। मतलब वहां मैं पहले समझ में भी नहीं आया मुझे, देन आई रियलाइज कि इतने क्यों खुश है, क्योंकि वहां ना गांजा लीगल हो गया और टाइम्स स्क्वायर में इतना गांजा फूका जा रहा है कि वहां की हवा में गांजे क्या AQI 750 रखे। मतलब तुम फूको भी मत, तुम सिर्फ सांस ले लो, तुम खुश हो जाते हो यार। मतलब वहां इतनी खुशी, वहां बच्चे नहीं रो रहे यार, 1.5 साल के बच्चे पूरा प्रोग्राम बना के आए कि आज माँ बाप की इवनिंग पे हगूंगा। वो जैसी प्रेम तुम टाइम्स स्क्वायर में होते हैं, सब खुश है वहां पे। हिंदुस्तानी बाप नहीं चिड़े हो वहां पे, हिंदुस्तानी बाप नहीं चिड़े हो यार। नहीं तो हर टूरिस्ट लोकेशन पे, हर टूरिस्ट शॉप पे, हर फैमिली के पीछे एक चिड़ा हुआ हिंदुस्तानी बाप फिर रहा होता है। क्या करनी और मैग्नेट तुमने, फ्रिज भरा तो पड़ा है, पहननी है ये टी शर्ट तूने बाद में, यहां बांग्लादेश से बन के जा रही, चेक कर ली। देन आई वेंट टू यूके, आई वेंट टू लंदन। लंदन में गया। लंदन अगर आप गए हो आपको पता होगा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लंदन बहुत महंगा है, इतना महंगा, वहां कपड़े महंगे हैं, जूते सब महंगा है वहां पे। मतलब आदमी रेट देख के आदमी कहता है चल 3 दिन बनियान में निकाल लूंगा। सब 50-60 हजार से नीचे कोई ढंग की जैकेट नहीं है, जूते बड़े महंगे सब। एंड आई फिगर्ड आउट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन लंदन। हुआ क्या है, दिस इज माय थ्योरी, कि अंग्रेजों ने पहले 300-400 साल सारी दुनिया लूटी, फिर वो थक गए, फिर क्या एक काम करते हैं, इनको यहां बुला के लूटते हैं। सही में तुम उन दुकानों पे जाके देखो, हम ही खरीद रहे हैं वहां। अंग्रेज खरीद ही नहीं रहे वहां से, वहां या चाइनीज खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, शेख खरीद रहे हैं। तुम देख रहे हो अंग्रेजों की ब्रिलियंस, उन्होंने लूटने में वर्क फ्रॉम होम लगा दिया। जैसे मेरी मम्मी मेरे को आज तक कहती कि तेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा, कूलर तो ठीक नहीं होता तेरे से। उनको अभी भी है कि वो 2.5 लाख रुपए वेस्ट हो गए क्योंकि 250 रुपए मिस्त्री के नहीं बच रहे। सही में कोई मिस्त्री आया ना घर में, होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर बैठा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बैठा, फिर भी हम बाहर से ठीक करवा रहे हैं। उनका अलग ही चल। और एक तो कूलर से तो मैं इतना दुखी हूं। एक तो मेरी मम्मी को प्यार है कूलर से, अभी भी आज की डेट में भी। शी विल बी लाइक, जो हवा कूलर की है ना वो एसी में है ही नहीं, जो हवा कूलर की एसी में है ही नहीं। मैं कहा हाँ मम्मी, एसी कभी भी नहीं करता, कूलर थूकता है तुम्हारे मुंह पे। जब थूकना बंद कर दे तुम समझ जाओ पानी खत्म हो गया। मैं बहुत दुखी था कूलर से। एक तो गर्मी में, सड़ती सड़ती गर्मी में स्कूल से आओ, जैसे ही करो ठंडी हवा चाहिए, हाँ पानी भरो पे।
जब तक तुम पानी भरो तब तक या तो लाइट चली जाती थी या शाम हो जाती थी. बट माई मदर इज इन लव विद द कूलर. तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस कूलर से. 20 साल से ये कूलर का वैसे का वैसे चल रहा है. वैसे का वैसे चल रहा है कूलर. वैसी की वैसी ठंडी हवा दे रहा है. वो मम्मी पिछले 20 साल में 4 बार इसकी मोटर सड़ चुकी है. 3 बार इसका पंखा चेंज करवाया हमने. जालियां हर साल बदल चुकी. फ्रेम भी 2 बार चेंज हो गया. तो ये कूलर वही कैसे है जो ये 20 साल पहले था. इस कूलर की सिर्फ आत्मा वही है, वस्त्र सारे बदल दिए हैं हमने. वो उनको अलग है. उनको ये कि प्रोफेशन यूज होना चाहिए. और ये सबके साथ होता है. सबसे ज्यादा होता है डॉक्टर्स के साथ. डॉक्टर्स का प्रोफेशन जितना यूज किया जाता है ना घर पे, मुझे बहुत तरस आता है डॉक्टर्स पे. ये डॉक्टर के नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा रिश्तेदार होते हैं इंडिया में. हर कोई बना के रखता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है. डॉक्टर बेचारे अपनी शादी पे भी गलती से किसी से पूछ लेना, और चाचा जी क्या हाल चाल है, लोग शुरू हो जाते हैं. बस यार थोड़ी सी गैस हो रही है और यार ना दाने निकल रहे, एक बार चेक करेगा. डॉक्टर्स का बेचारों का बहुत बुरा हाल है इंडिया में. हम इनको खाने भी बुलाते हैं ना, दूसरी बार फोन कर देंगे, सुन बीपी की मशीन ले आएगा साथ में. इनका अलग लेवल का हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर. एक तो चक्कर क्या है कि एक तो डॉक्टर्स के साथ ना अब उनका कंपटीशन बहुत बढ़ गया. डॉक्टर्स का कंपटीशन बहुत बढ़ गया क्योंकि उनका कंपटीशन बाकी डॉक्टर्स के साथ नहीं है, उनका हम सबके साथ कंपटीशन है. क्योंकि जब से व्हाट्सएप आया ना, हम सबके सब डॉक्टर बन गए हैं. और ये बेचारे फिर भी 80% कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप 4 दिन दवाई लो, दोबारा दिखाना आके. हमारे घर के डॉक्टर 150% कॉन्फिडेंट. तू 2 हफ्ते सुबह उठ के लहसुन खा लेता, हार्ट साफ है तेरा ना. मेरा परसों बाईपास है, मैं बता रहा हूं कराने की जरूरत ही नहीं. तू खा के देख, मेरा नाम बदल दियो. अभी मैं रहूंगा तो बदलूंगा. पर आजकल है इनके साथ डॉक्टर्स का बहुत बुरा हाल है. आई टेल यू, मैं एक बार परफॉर्म करा था. आई वाज परफॉर्मिंग एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट्स. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो यहाँ है क्या, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ये है हिंदुस्तान में बहुत है, मुझे आइडिया ही नहीं था. 800-900 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आए हुए. एंड आई वाज लाइक इतने. बट देन आई रियलाइज इंडिया में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं ना, हमको चाहिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. जैसे राजस्थान में अगर आप लाल मांस मिलता है, राइट, लाल मांस किसी ने खाया? बहुत लाल मिर्च होती है, अंदर तक लाल मिर्च होती है. मतलब तुम खा लो ना, उसके बाद 3 दिन मन करता है आइसक्रीम खाता रहूं, 4 दिन मन करता है आइसक्रीम पे बैठा रहूं. बेसिकली हम जितने मसाले घोट रहे ना, हमको चाहिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. आई वाज एट दिस कॉन्फ्रेंस एंड आई वाज परफॉर्मिंग एंड आई रियलाइज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट 90% पतले, सबके सब पतले. एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई. बट लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट. होता क्या है, आई वाज टॉकिंग टू देम कि देखो इंडिया में वेट आदमी का तब ज्यादा बढ़ता है जब हम पब्लिक फंक्शन पे जाके ज्यादा खाते हैं, क्योंकि शगन के पैसे पूरे करने रहे. ये बेचारे वहां भी खाने लगते हैं ना, कोई ना कोई सलाह लेने आ जाता है. 3 दिन से ना बिल्कुल हलवे जैसी आ रही है, गुलाब जामुन, बेचारे खा ही नहीं पा रहे. डॉक्टर्स की बहुत हालत खराब है. योगा भी 15 तरीके का हो रहा है आजकल. कितने तरीके का योगा आ गया. योगा, पावर योगा, हॉट योगा, गोट योगा. मतलब अंग्रेजों ने योगा के साथ वही करा है जो हमने उनके पिज्जा के साथ किया था. कुछ लोग आजकल एक नया फैशन चला है, वीगन हो गए. राइट, वीगन जिनको नहीं पता, वीगन जो लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, कुछ भी यूज नहीं कर रहे एनिमल्स का, कि दूध, दही, लेदर भी नहीं लेते, वो कुछ भी नहीं यूज करते. तो वीगन लोग एक तो अपनी आधी जिंदगी लेबल पढ़ने में निकालते हैं. हर चीज का पढ़ रहे हैं कि इसमें एक भी बूंद कहीं अंडा, दूध, दही कुछ ऐसा है तो नहीं. बाकी आधी जिंदगी इन चीजों का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं. तो मैंने रियलाइज करा कि वीगन होने के लिए ना वेला होना बड़ा जरूरी है. कामकाजी आदमी वीगन नहीं हो सकता. और वो ऐसे वाहियात तुमको चीजें लाके दे रहे हैं, ऐसी वाहियात रिप्लेसमेंट दे रहे हैं.
मेरा एक दोस्त वीगन हो गया, कहता अमित यू शुड ट्राई आलमंड मिल्क। आलमंड, मैं कहा हम बचपन से बादाम दूध पी रहे हैं यार। कहता नहीं पागल, आलमंड मिल्क बादाम से दूध निकालते हैं। मैं कहा बात सुन, हमने बादाम को बचपन से ये बोल के पाला है कि तू ड्राई फ्रूट है, तू ड्राई फ्रूट है, फ्रूट भी तू बाद में है, पहले तू ड्राई है। अब हम सडनली उसको बोले तू दूध दे। ज्यादा नाजायज नहीं हो गया। फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आजकल लाइफस्टाइल कोचेस आ गए हैं, राइट? आजकल लाइफस्टाइल कोचेस बहुत आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, जो वो एक रील में बता रहे तुमको, 5 थिंग्स टू डू एज सुन एज यू वेक अप। आदमी कहता बहन आराम से बता ना। फाइव वेज टू हैव अ हेल्थियर गट। उनको म्यूजिक ज्यादा जरूरी है, सलाह उतनी जरूरी नहीं है। वो रोज कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं, तो डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे। मैं थोड़ा फॉलो करना शुरू करा। वन ऑफ द थिंग्स दैट दे टेल यू इज दैट सुबह सूरज उगने के बाद खाना शुरू करना चाहिए, सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। देखो ओके, करे चीनी छोड़ दो, तला हुआ छोड़ दो, मैं ठीक है। मैदा छोड़ दो, आटा भी कम कर दो क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, मैं ठीक है। करे शराब भी छोड़ दो, मैं कहा अच्छा। करे चाय सुबह पहले 3 घंटे नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। लंच के आसपास मत पियो क्योंकि उससे ब्लोटिंग हो जाती है, और लेट इवनिंग पियोगे तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते, तो ये तीनों टाइम भी मत पियो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने अपनी नस कहां काटनी है जाके? क्योंकि जीने की कोई वजह तो छोड़ी नहीं तूने। किस लिए जिंदा है हम? फिर वर्कआउट करना था। और मेरी वाइफ जाती थी ऑलरेडी, शी यूज्ड टू गो टू अ स्टूडियो फॉर वर्कआउट। आजकल स्टूडियोज बन गए, आपको पता होगा। यहाँ हो रहा है पिलाटेस हो रहे हैं, कैलिस्थेनिक्स हो रहा है, योगा भी 15 तरीके का हो रहा है आजकल। कितने तरीके का योगा आ गया, योगा, पावर योगा, हॉट योगा, गोट योगा। बाहर होता है गोट योगा, वाइन योगा भी हो रहा है। गोट योगा में बकरियां खड़ी कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। मतलब अंग्रेजों ने योगा के साथ वही करा है जो हमने उनके पिज्जा के साथ किया था। मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया हॉट योगा। मैं क्या करते हैं उसमें? कहते हैं हम कमरा बंद करते हैं, उसमें 42 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, फिर उसमें हम योगा करते हैं ताकि पसीना ज्यादा है। मैं कहा बहन तू बॉम्बे में रहती है। बहन इसलिए क्योंकि देखो 20 साल हो गए शादी को। बहुत सारे ऐसे हैं यहां पे जिन्होंने भाई साहब बहन जी बोल चुके हैं हम लोग, बहुत लोग हैं। 10 साल बाद ये रिश्ता वहां पहुंच जाता। मैं तो बॉम्बे में रहती है, हमारी छत पे ऑलरेडी 42 है, तुम कमरा बंद क्यों कर रहे हो? बड़ो कर रहे। एंड मैं नहीं गया, मैं स्टूडियो नहीं गया, मैं गया हूं जिम गया। एंड मैंने रियलाइज करा कि जिम और स्टूडियो में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जिम और स्टूडियो का फर्क मैं बताता हूं। जिम वाले लेते हैं 1500 रुपए महीना, और वहां होती है सारी मशीन। 1500 रुपए में सारी मशीन है, उनका ट्रेडमिल भी है, रोइंग मशीन है, वेट्स हैं, क्रॉस ट्रेनर है, सब कुछ है। स्टूडियो वाले लेते हैं 5000 रुपए महीना, और उनके पास होता है सिर्फ फर्श और इंग्लिश। सही में वही फर्क है, क्योंकि जिम वाले ना बेचारे वो लैंग्वेज बोले जो उनको समझ में आ जाती है कि हम बाइसेप्स पे काम करेंगे, ट्राइसेप्स पे काम करेंगे, हम आपका इंच लॉस करवा देंगे। स्टूडियो वाले ऐसे ऐसे मसल के नाम ले रहे हैं, हमने सुने ही नहीं थे कभी। वी विल वर्क ऑन योर क्वाड्स, वी विल शेप अप द ग्लूट्स, वी विल स्ट्रेंथन द पेक्टोरल्स। आदमी कहता है यार इसके तो तू 5000 रुपए भी कम ले रहा है, फिर 4500 तो शशि थरूर ले जाता होगा तेरी ट्यूशन के।
मैं गया हूं जिम गया हूं, मैंने एक तो रियलाइज करा, जिम आप 2-3 हफ्ते जाओ ना, 2-3 हफ्ते में देखो बॉडी तो आती नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत आता है। 2-3 हफ्ते तुम जिम चले जाना, उसके बाद हमें जहां भी शीशा दिखता है ना, हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। ये नया है ना, जब से 2 के 4 पुशअप करें तब से आए। हम देख रहे हैं अपने आप को, हम नहाने भी जाते तो आधा घंटा हम शीशे के आगे कर रहे हैं। और जिम जाओ ना, एक तो आजकल लोग बहुत ऐसे आते हैं, कई मिलते हैं जिम में, जो जिम में तो आधा घंटा लगाते हैं, गूगल पे 4 घंटे लगा के आ रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, जिनको तुम्हारी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। हमारे हर एक के ग्रुप में होता है ना 2-3 लोग, जब तुम खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुमको टोक देंगे, ऐसे बोतल से सीधा पानी मत पियो, ग्लास से पीना चाहिए, और वो भी सिप सिप करके पीना चाहिए। खाना खाते हो ना तो सब कुछ एकदम आलती पालती मार के नीचे बैठ के मोबाइल फोन बंद करके, मैं तेरा मुंह बंद करके ना खाऊंगा। इनके पास हर चीज के लिए एडवाइस है। पालक पनीर नहीं खाने दे रहे आजकल, कि पालक और पनीर इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैं तेरे को कैंसिल करना चाहिए पहले तो, खाना तो शांति से खाने दो। पर इनको कोई चीज तुम्हारी पसंद नहीं आ रही तो इनको कुछ भी बता दो, मैं आधा घंटा रनिंग करता हूं। हाँ कार्डियो कर, पर 40s के बाद अगर वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा है ना, कोई फायदा नहीं। तुम इनको बोल दो मैं योगा करता हूं, हाँ योगा कर, पर अगर तेरी ब्रीदिंग टेक्निक ठीक नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। मैंने एक को परेशान होकर बोल दिया, मैंने कहा मैं सोच रहा हूं मैं अपनी बाजुएं कटवा दूं, 5 किलो कम हो जाएगा कम से कम। हाँ बाजुएं कटवा दे, पर अगर तेरे पास रामलाल नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। और जिम तुम चले भी जाओ, मैं रियलाइज करा, कभी भी तुम लोगों को आज सलाह दे रहा हूं, पर्सनल ट्रेनर मत रखना, पर्सनल ट्रेनर मत रखना, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर और यमराज में सिर्फ बाल बराबर का फर्क होता है। पर्सनल ट्रेनर वहां छोड़ देता है कि ये लाश कल रेंग के वापस आ जाए, बस। इन लोगों में कोई रहम नहीं है। तुम जाके देखो जिम में जो पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करते हैं, मैट पे बिछे पड़े होते हैं वो लोग, टांगे एक साइड, सर एक साइड, सर के ऊपर हाथ होता, आधा शरीर पसीना हो चुका होता, और आदमी लेटा हुआ सोच रहा होता कि यार मर तो चुका हूं, ये यमराज क्यों नहीं दिख रहे अभी तक। उतने में तुम्हारा ट्रेनर ऊपर से आएगा, सर एक सेट और करते हैं अभी, वो नहीं छोड़ रहे। एंड ऑनेस्टली इंडिया में थोड़ा वेट लॉस मुश्किल भी है, वेट लॉस मुश्किल भी है, क्योंकि हमें चक्कर क्या है कि हमें ना इंस्पिरेशन नहीं आती। जब किसी चीज की इंस्पिरेशन आए ना तो आदमी लॉजिक से चलता है। हमें इंडिया में डाइटिंग में इंस्पिरेशन नहीं आती, हमें आती है माता, तो हम किसी की बात सुनते नहीं है। क्योंकि वेट लॉस का ना एक सिंपल लॉजिक है कि ब्रेकफास्ट हैवी, लंच ओके, डिनर लाइट, राइट? कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर, डिनर लाइक अ पॉपर। हम जब डाइटिंग करते हैं हमें सुबह 6 बजे से माता आ जाती है, मैं डाइटिंग में हूं, मैं डाइटिंग में। एक काम कर, नाश्ते में ना आधा एप्पल दे दे बस, मैं डाइटिंग में। चाय में चीनी मत डाल, दूध भी मत डाल, मैं डाइटिंग पे। एक काम कर, लंच में चने ही पैक कर दे, मैं डाइटिंग पे। वो शाम को 7 बजते बजते हमारी आंतड़ियां हो जाती इकट्ठी, शक्ल लटक के घुटनों पे पहुंची होती है, और हम डिप्रेशन में बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे कि यार फिर जी क्यों रहे हैं यार। मर जाए यार हम, छोड़ गुलाब जामुन लेके आया, डाल दे ले ली। All the way from India, the most funniest Amit!
फेसबुक? नो, फेसबुक आजकल कई हर कोई होता है. लाइक यू नो द थिंग इज, आई थिंक देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल दीस डेज. पीपल हु हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, एंड पीपल हु हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ. मेरे ज्यादातर फ्रेंड फर्स्ट कैटेगरी में. लाइक कुछ भी होता है शुरू हो जाते हैं ट्विटर फेसबुक पे, शुरू हो जाएंगे. यू नो अर्थक्वेक विल स्टार्ट, यू नो थंडरस्टॉर्म विल स्टार्ट, यू नो दिस रेन दैट विल स्टार्ट. लाइक मुझे लगता है आधी ग्लोबल वार्मिंग भी इस चक्कर में हो रही है. बिकॉज रिसेंटली आई वाज इन बैंगलोर, और बैंगलोर में हम थे तो हल्की सी बारिश हुई, बंद हो गई. मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि भगवान ने थूका और छोड़ दिया. एंड आई थिंक समवेयर गॉड इज ऑल्सो यू नो फेड अप ऑफ ऑल दिस, कि यार मैं कुछ शुरू करने लगता हूं, तुम साले शोर पहले मचा देते हो. सो ही इज ऑल्सो लाइक, तो एक और स्टेटस अपडेट आया ना, मिट्टी की खुशबू वाला सालो. सारा सीजन सूखा रखूंगा तुमको मैं. लोग शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज पे. लाइक दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी ट्वीटेड देयर वाज एन अर्थक्वेक इन you know in Delhi, and she tweeted, oh my god, the building is shaking, I think I'm going to die. And I'm thinking, if the building is shaking and you are tweeting rather than running for your life, kind of made the choice, right? और ये एक फायदा है, देखो फेसबुक ट्विटर का एक फायदा है कि आजकल नाउ यू डोंट हैव टू मीट समबडी टू फिगर आउट वेदर दे आर स्टूपिड और नॉट. स्टेटस अपडेट से पता चल जाता है लोगों के. लाइक लोग होते हैं, उनका स्टेटस अपडेट आएगा, फादर इज लाइक अ बरगद का पेड़, रूट्स इन द ग्राउंड एंड छाया ऑल अराउंड. इफ यू लव योर फादर लाइक दिस, लाइक मेरे को मेरा बाप पसंद है पर तू नहीं पसंद. अलग लेवल के. फिर एक होते हैं वो लौंडे होते हैं वो जो जिनकी फोटो होती है, मतलब वो क्या 18-19 साल के लौंडे जो जिम ज्यादा जाते हैं और कॉलेज कम. उनकी डीपी ऐसे होती है, एक हाथ से बनियान उठाई हुई है, दूसरे हाथ में उनके कैमरा है जिसे खींचा हुआ उन्होंने फोन वाला. बेसिकली उन्होंने पैक 6 बना लिए, दोस्त एक नहीं बनाया जो फोटो ले सके. So there's a cousin of mine like that. उसका स्टेटस अपडेट आया, डोंट जज मी. बस. एंड आई एम लाइक, इस स्टेटस अपडेट से पहले कोई तेरे पे थूक भी नहीं रहा था. पर अब तूने डाल दिया, सबको पता चल गया तू गधा है. फिर कुछ फायदे भी होते हैं, लाइक जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक पीस हो गया फेसबुक के कारण, क्योंकि मेरी मम्मी फेसबुक पे चली गई है. बड़ा फर्क पड़ गया. लाइक यू नो नाउ शी डजंट जज माई वाइफ, शी जजेस एवरीबडीज वाइफ्स. अब उन्होंने देख लिया कि सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है जो गोवा जाके निकरे पहन के फिरती है. बट होते हैं, इश्यूज भी होते हैं फेसबुक पे. तो एक बहुत बड़ा इश्यू जो है ना फेसबुक का, वो ये है कि जब से फेसबुक आया ना, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. राइट? लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि तुम फेसबुक पे जाओ, लगता है यार सारे पार्टी कर रहे, सारे घूमने गए हुए हैं, सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मैं ही बेवकूफ हूं घर बैठा हूं. एक मेरा फ्रेंड, उसकी 16th मैरिज एनिवर्सरी, उसने फेसबुक पे डाला हुआ, डियर वाइफ, यू आर माई रॉक ऑफ जिब्राल्टार. आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन विदाउट यू. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज, यू ऑलवेज बीन देयर. एंड आई एम थिंकिंग, 3 दिन पहले शराब पी के तू ही साले रो रहा था मेरे सामने. और प्रॉब्लम क्या है, वो मेरी वाइफ के साथ भी फेसबुक पे कनेक्टेड है, और 2 महीने बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है.
और मुझे पता है जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी 12:01 पे मेरी वाइफ होगी फेसबुक पे, चाल चलो ठाकुर। क्या मिला तुझे? बट लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया। तो आजकल क्या, घूमने जाना पड़ता है। जब हम छोटे होते थे, राइट, घूमने जाना पड़ता है फेसबुक के चक्कर में, राइट। हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर, हर साल नानी के घर जाना। 10 साल वापस आके ऐसे लिखना होता था, कहां घूमने गए, 10 साल करनाल लिखा है मैंने। लाइफ वॉज इजी। आजकल क्या है, ये फेसबुक के चक्कर में जाना पड़ता है घूमने, और तुम कहीं भी चले जाओ लोग जीने नहीं देते तब भी तुमको, क्योंकि तुम शिमला जाओ कोई ना कोई गोवा की फोटो डाल देता, आदमी गोवा जाता है कोई ना कोई सिंगापुर की फोटो डाल देता, तुम सिंगापुर चले जाओ कोई यूएस की फोटो डाल रहा है। मैं इसी चक्कर में यूएस नहीं जा रहा। मैं जिस दिन यूएस चला गया मुझे लगता है कोई ना कोई मेरा दोस्त साला चंद्रमा की फोटो डाल देगा। और फिर क्या, चलो कुछ लोगों के पास पैसे हैं, वो बन सकते हैं टूरिस्ट, वो घूम सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर वो खुश दिखना चाहते हैं, वो बनते एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर वो होते हैं जिनका स्टेटस अपडेट आता है फेसबुक पे, 10 किलोमीटर्स बिफोर शिमला there's this lovely kacha road which goes to this awesome village called Kamakha, which is in the middle of nowhere. मिडिल ऑफ नोवेयर का मतलब है वहां बिजली नहीं आती, और तेरे को 250 रुपए में कमरा मिल गया था। फिर होते हैं मैराथन रनर्स। एनी मैराथन रनर्स इन द रूम? ये मैराथन रनर है। तो एक बात बताओ मेरे को, तो सुबह 6 बजे जंगल में भाग रहा है, तुम्हारी ये वाली फोटो कौन लेता है रोज? रोज नई डली हुई होती है यार। फिर होते हैं फूड फ्रीक्स। फूड फ्रीक्स वो होते हैं जो खाने की फोटो डालते हैं, राइट, खाने की फोटो डालते हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 10 साल से। और वेट लूज करने का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि शाम को 7:30 के बाद मत खाओ, राइट। जो हां कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को देखा। प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है पर करता कोई कुछ नहीं। लाइक जनरल मोटर्स की डाइट का प्रिंट आउट भी लेके आते हैं, फिर देखते हैं 3 फ्रूट इस मौसम में मिलेंगे ही नहीं। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। इवन व्हेन वी गेट ऑन द वेइंग स्केल वी आर लाइक 4 किलो तो कपड़ों का होगा। कल से पॉटी भी नहीं आई वैसे। अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बट द थिंग इज, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो आदमी 7 बजे डिनर कर लेता है, 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते, 11 बजे आदमी सोने लगता है। 11, सवा 11 बजे लास्ट टाइम बेड पे बैठ के आदमी फेसबुक पे मत्था टेकता है। राइट, एक बार तो चेक करते हैं ना कि मेरे से ज्यादा कोई खुश तो नहीं है। और तब निकलती है इन फेसबुक ये फूड फ्रीक्स की फोटोग्राफ्स। उन्होंने फोटो डाली होगी, बिट्टू टिक्की वाला की टिक्की है, एकदम धुआं निकल रहा है, दही डली हुई है, चटनी डली हुई है, नो ऊपर अनार के दाने भी हैं, छोले भटूरे एकदम फूले हुए, एकदम करारे, चिक्कड़ चने साथ में, और चटनी वाले प्याज। सुन के भूख लग रही है ना? तुम सोचो जो आदमी 4 घंटे से भूखा हो उसका फोटो देख के क्या हाल होगा। इन कमीनों के चक्कर में आदमी रात को 12 बजे उठ के मैगी बना के खा रहा होता है।